Healing of tissues. Okay, so what is healing? Healing is the body response to injury to restore normal structure and function. Healing is a body response to injury क्यों रिस्टोर करें नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. हीलिंग दो टाइप का होगा, रीजनरेशन और रिपेयर. जो रीजनरेशन होगा अकर्स when healing takes place by proliferation of parenchymal cells resulting in complete restoration of the original tissue. रिपेयर क्या होगा when healing takes by proliferation of connective tissue elements resulting in fibrosis and scarring. ठीक है, हीलिंग क्या है? ये बॉडी रिस्पॉन्स है किस लिए? इंजरी के लिए, टू रिस्टोर नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. हीलिंग दो टाइप का हो गया, रीजनरेशन और रिपेयर. रीजनरेशन कब होगा? व्हेन प्रोलिफरेशन ऑफ पैरेन्काइमल सेल्स क्या करेगा? रिस्टोरेशन ऑफ द ओरिजिनल टिश्यू. प्रोलिफरेट करके पैरेन्काइमा सेल रिस्टोर करेगा ओरिजिनल टिश्यू. रिपेयर क्या होगा? व्हेन हीलिंग टेक्स प्लेस बाय कि ऐसे प्रोलिफरेशन होगा किसका? कनेक्टिव टिश्यू का. रिजल्ट इन फाइब्रोसिस एंड स्कारिंग. ठीक है, अब ये सब चीज़ हम लोग नहीं पढ़ेंगे, अब हम लोग डायरेक्ट आएंगे डिफरेंसेस पे. Difference between primary and secondary union of a first intention, that is primary union. This type of healing occurs when the wound has the following features. क्या क्या होगा? क्लीन होगा, अनइन्फेक्टेड होगा, ठीक है, सर्जिकली इंसाइज्ड होगा विदाउट मच लॉस ऑफ सेल एंड टिश्यूज. एजेस ऑफ द वुंड आर अप्रॉक्सीमेटेड बाय सूचर्स. प्राइमरी यूनियन में क्या होगा? पहले इनिशियल हेमोरेज होगा, acute inflammatory response, epithelial change, organization and suture tracts. तो 5 चीज़ होता है. पहले हेमरेज होगा, ठीक है. immediately after injury the space between the approximated surface of the wound is filled with blood and it clots and seals the wound. Acute inflammatory response, within 24 hours there is appearance of polymorphose या macrophage on third day. Epithelial cell, the basal cell of epidermis from the cut margin starts proliferating and migrating towards approximated and cover it in 48 hours. This separates the viable dermis from overlying necrotic material and forms scab which is cast off. By 5th day a multi-layered new dermis is formed. पहले क्या हुआ कि हेमरेज हुआ, ठीक है, फिर जो तुम्हारा स्पेस था उसमें अप्रॉक्सीमेट हो गया, ब्लड क्लॉट, सील्स वगैरह. अक्यूट इन्फ्लेमेटरी 24 घंटे के अंदर हो जाएगा, मैक्रोफेज आ जाएगा थर्ड डे तक. एपिथेलियल सेल जो होता है, जो बेसल सेल ऑफ एपिडर्मिस होता है, फ्रॉम द कट मार्जिन स्टार्ट प्रोलिफरेटिंग एंड माइग्रेटिंग towards approximated and cover it in 48 hours. By 5th day a multi-layered new epidermis is formed. Organization, by 3rd day fibroblast invade the fibroblast तीसरे दिन तक आ जाएगा in the wound area and by 5th day new collagen fibrils start forming. ठीक है. 4th week तक scar tissue with scanty cellular and vascular elements and metallized surface is formed. Suture tract, each suture tract is a separate wound and inside the same procedure of healing. When sutures are removed by 7 days the scars appear clean. अब तुम्हारा देखो healing by second intention, open with large tissue defect, often infected, extensive loss of cells and tissues, wound cannot be approximated by sutures and is left open. Healing is slow and results in large ugly scar. Initial hemorrhage इसमें भी होगा, wound is filled with blood and clot. Inflammatory initially acute inflammatory response followed by macrophages which clear of the debris. Epithelial change इसमें भी होगा, the epithelials proliferate and migrate to the wound in the form of spurs till they meet in the middle but not covering the surface fully until granulation tissue form base has start filling the wound space. उतना नहीं लिखना है. ग्रैनुलेशन टिश्यू क्या होता है? प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द वुंड, ठीक है, एंड इज फॉर्म बाय प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट एंड न्यू वैस्कुलराइजेशन. वुंड कॉन्ट्रैक्शन नॉट प्रेजेंट इन प्राइमरी यूनियन. ये चीज़
प्राइमरी में नहीं होगी, सेकेंडरी में होती है। ड्यू टू मायोफाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट इन द ग्रैन्युलेशन टिश्यू द वुंड कॉन्ट्रैक्ट्स 1/3 to 1/4 of the original size. Presence of infection, bacterial contamination of an open wound provoke necrosis and suppuration. ये MCQ में आया हुआ है. Surgical removal of dead and necrotic tissue, debridement and help in preventing bacterial contamination. बस ख़त्म. Difference between primary and secondary union of wound. प्राइमरी में क्लीनलीनेस क्लीन होता है, सेकेंडरी में नॉट क्लीन. इन्फेक्शन प्राइमरी में नॉट इन्फेक्टेड, सेकेंडरी में इन्फेक्टेड होता है. मार्जिन जो होते हैं वो सर्जिकली क्लीन होते हैं प्राइमरी में, सेकेंडरी में इरेगुलर होता है. सूचर्स यूज्ड होते हैं, इसमें नॉट यूज्ड होते हैं. ठीक है. हीलिंग होता है स्मॉल ग्रैनुलेशन टिश्यू, इसमें लार्ज होता है. आउटकम कैसा होता है, लीनियर स्कार. और सेकेंडरी में होता है इरेगुलर वुंड. देखो इरेगुलर मार्जिन्स में भी आता है और आउटकम में भी आता है. कॉम्प्लिकेशन नॉट फ्रीक्वेंट, इसमें होता है फ्रीक्वेंट. तो कैसे याद रखोगी, क्लीन नॉट क्लीन. देखो जो प्राइमरी है वो ज़्यादा अच्छा है. क्लीन है, नॉट इन्फेक्टेड, सर्जिकली क्लीन, सूचर्स आर यूज, स्मॉल ग्रैनुलेशन टिश्यू, लीनियर स्कार एंड नॉट फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशन. ओके. अब देखो कॉम्प्लिकेशन ऑफ वुंड हीलिंग क्या होता है. इन्फेक्शन हो जाता है, एपिडर्मल सिस्ट होता है, डेफिशिएंट स्कार फॉर्मेशन, इंसीजनल हर्निया और पिगमेंटेशन. अब आते हैं कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हीलिंग. हीलिंग का दो फैक्टर है, एक है लोकल, एक है सिस्टमिक. जो लोकल है उसमें इन्फेक्शन क्या करेगा बताओ, डिले करेगा. पुअर ब्लड सप्लाई स्लोज हीलिंग. फॉरेन बॉडीज इंक्लूडिंग सूचर्स इंटरफियर विथ हीलिंग. मूवमेंट डिले करेगा. यूवी लाइट से फैसिलिटेट करेगा. एक्सपोजर टू आयोनाइजिंग रेडिएशन डिले करेगा. सिस्टमिक फैक्टर्स जो रेगुलर होता है वो क्या होता है, जो मतलब नॉर्मल होता है, सॉरी. एज, न्यूट्रिशन, सिस्टमिक इन्फेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स एंड हेमेटोलॉजिक एबनॉर्मेलिटीज़. एज क्या होगा, बच्चों में ज़्यादा होता है कंपेयर टू बूढ़ों में, रैपिड होगा, सॉरी. न्यूट्रिशन क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन और विटामिन सी एंड जिंक. डिलेज वुंड हीलिंग. सिस्टमिक इन्फेक्शन डिलेज वुंड हीलिंग. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का इनहिबिटरी इफेक्ट होता है वुंड हीलिंग में. अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स are prone to develop infection and thus delay wound healing. Hematologic abnormalities, defect of neutrophil function delays healing. अब healing specialized tissue, इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है फ्रैक्चर हीलिंग के बारे में. ठीक है. तो डिले इन स्पेशलाइज्ड टिश्यू अकर्स बाय कैलस फॉर्मेशन एंड डिपेंड्स ऑन वेदर द फ्रैक्चर इज ट्रॉमेटिक या पैथोलॉजिकल. कंप्लीट, इनकम्प्लीट, सिंपल, कंपाउंड. द बेसिक इवेंट क्या होगा, प्राइमरी यूनियन of fractures occurs when the ends of the fracture are approximated by application of clamps. The bony union takes place by medullary callus. There is more extensive bone necrosis and slow healing. तो इसमें क्या क्या यूनियन होगा फ्रैक्चर्स का, when the ends of the fracture are approximated by application of clamp. कैम्प लगा के जोड़ दिया जाता है. bony union takes place कैसे, medullary callus बनता है. more extensive bone necrosis and slow healing. ठीक है. ये सब चीज़ अब हम लोग को नहीं पढ़ना है. अब आगे देख लो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकता है. फाइब्रस यूनियन में रिजल्ट इफ द इमोबिलाइजेशन ऑफ द फ्रैक्चर्ड बोन नॉट डन. नॉन यूनियन में रिजल्ट इफ सम सॉफ्ट टिश्यू इंटरपोज बिटवीन. डिलेड यूनियन हो सकता है इन्फेक्शन वगैरह की वजह से. और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं. अगर फ्रैक्चर हीलिंग आए तो बस उतना लिख देना काफ़ी है.